Hello friends, I welcome you all in this video lecture series and now today I am just going to solve few problems from the topic that is group of units. This topic is very important. You can see here the two problem. First problem in December 2015 and the second problem is asked in June 2016, right? One is from the part C, another is asked in part B. So this topic is very important, and in the upcoming exam may have possible the question may be asked from this topic, right? So now we know, first we need to know what is the meaning of group of units, right? And when we say that it is cyclic, right? So first question, we solve this question which has been asked in December 2015 from the part C. So before going to start, we need to know what is the short formula, right? First, what is the short formula to solve these type of questions? So first we need to know this Z by NZ, basically this star which represent the group of units of what? Group of units of this Z by NZ, right? So as we know, this is basically isomorphic to Zn. In the similar way, this group of units which is isomorphic to Un. I think everyone knows what is Un. Un is basically multiplicative group of integer modulo n, right? This is basically, I just define Un, which is a collection of all those integer. So x is from the set of integers such that the GCD, first thing is that x is less than or equal to n, x is less than or equal to n and greater than or equal to 1, and the GCD between x and n is what? 1. देखिए, हमें एक एक चीजें, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रुप ऑफ यूनिट्स. ऑल्सो वी नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएन, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है कई प्लेसेस पे और स्पेशली इन साइक्लिक ग्रुप, राइट? नाउ yes, in this question what they ask, n is greater than or equal to n, then you have to tell about this group of units is cyclic. कब साइक्लिक होगा और कौन सा साइक्लिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइक्लिक. तो ये तो आपको पता है कि दिस इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ यूनिट्स, राइट? नाउ we have to tell when this group of units is what? Cyclic. तो इन चारों ऑप्शन में as we know this is from the part C, so more than one option may be correct, right? Now first we need to know when this group of units is cyclic. कब होता है ये साइकिल? तो साइक्लिक जानने के लिए सबसे पहले मैं एक शॉर्ट फार्मूला लिखूंगा. उस शॉर्ट फार्मूले से विद इन 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि when we say that z upon n z star, that is group of units is basically cyclic if, देखिए यहाँ पे जो n है इसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. दिस n इज बेसिकली आइदर 1 हो जाए या फिर 2 हो जाए या फिर 4 हो जाए, राइट? और p रेज टू द पावर k हो जाए और 2pk raised to the power k हो जाए. If this n is equal to any of these, then we say that this is basically cyclic, right? So now what about this p and k? p और k है क्या? So p is basically, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है. दिस इज p is not prime, right? p is basically odd prime. So जो odd prime होगा उसे ही लेना है, इवन प्राइम को हमें नहीं लेना है. नाउ व्हाट अबाउट दिस के? के इज बेसिकली ग्रेटर देन 0, राइट? सो नाउ यू कैन इजिली चेक वेदर विच आर बेसिकली फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप. कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से साइक्लिक है? तो सबसे पहले चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1, राइट? और देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं बार बार रिपीट करता हूं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई थ्योरम, कहीं ना कहीं कोई लेमा,
छिपा हुआ है, बिकॉज 2 मिनट 4 मिनट के अंदर कोई भी आप अगर प्रूफ करने लगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक फार्मूले जानने हैं जिसके थ्रू हम विद इन 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, राइट। माई ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू द शॉर्ट फार्मूला, राइट। फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई द शॉर्ट फार्मूला। अगर अप्लाई हो गया 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सॉल्व कर लेते हैं, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर हम लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हैं, बस वही है अपने पास अगर टाइम है तो। बट इट इज बेटर इफ वी यूज द शॉर्ट ट्रिक्स इफ यू नो, क्योंकि वहां हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें थ्योरम्स और लेमा प्रूव नहीं करने हैं। आप सब कुछ जानते हैं आप, बट हो सकता है आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, राइट। उसके लिए बस एक तरीका है, आप हर चीज आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी पता हो, थ्योरम्स भी पता हो, लेमा भी पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो आपके, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ वी जस्ट सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए जेड बाई 10z star, right? Group of units where n is basically 10. Now the question is whether this is cyclic or not. तो आप थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करिए क्या हो सकता है। n की वैल्यू 1 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, 4 तो है नहीं, p रेज टू द पावर k। कोई ऐसा ऑड प्राइम ले सकते हैं जिसपे पावर k करने पे, तो सबसे पहला ऑड प्राइम आपको पता है 3 है, 3 पे पावर 1 कर सकता हूँ 3 आएगा, 3 पे पावर 2 करूंगा क्या आएगा 9 आ जाएगा, 3 पे पावर 3 करूंगा देन इट विल बी 27। तो कोई ऐसा ऑड प्राइम तो इनिशियल स्टेज में नहीं दिख रहा है जिसका हम क्या करें p रेज टू द पावर k करें तो क्या आ जाए 10 आ जाए, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिस इज बेसिकली 2 इंटू 5। तो यहाँ पे लास्ट वाले में देखिए लिखा हुआ 2 इंटू p रेज टू द पावर k। अब अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें कि वेदर इट इज इक्विवेलेंट टू दिस और इक्वल टू दिस, यस 2 इंटू पी है, देखिए p की जगह पे क्या है 5 एंड प्लेस k की जगह क्या है ग्रेटर देन 1 दैट इज ग्रेटर देन 0 दैट इज 1। सो व्हाट वी कैन से, ये वाला फॉर्म जो है 2p रेज टू द पावर k ये हो रहा है। ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज बेसिकली फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप, right? So now in this way you can say that the first option is correct. Now what about the second option? Now the second option says this is basically z by 2 cube z, right? And this is star that indicate group of units. Now just predict what is the possibility. Now if you um, look here, then n is basically in the second case it is 2 raised to the power 3, right? 2 raised to the power 3. Now what about this 2 raised to the power 3 आ गया। अब देखिए यहां से ये 1 है, ये तो हो नहीं सकता, 2 raised to the power 3। अच्छा देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 होना चाहिए, आइदर 2 और 4, तो 2 तो है नहीं, 4 की बात करें 4 भी नहीं है, ये तो 8 है, राइट। नाउ p रेज टू द पावर k, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे p रेज टू द पावर k, यस यूज दिस फॉर्म, लेकिन मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे p इज बेसिकली ऑड प्राइम, जबकि यहाँ पे p क्या है, देखिए ये प्राइम नंबर तो है 2 बट इट इज इवन प्राइम, सो दिस ऑप्शन दिस बेसिकली नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू दिस नंबर, ये भी नहीं हो सकता। नाउ मूव ऑन द लास्ट ऑप्शन 2 इंटू पी, ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा 2 इंटू पी के फॉर्म का, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर p रेज टू द पावर k समझ लेते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया p मस्ट बी ऑड प्राइम, जबकि यहाँ पे 2 क्या है इवन प्राइम है, p की जगह 2 लिखा हुआ है विच इज बेसिकली इवन प्राइम नॉट ऑड प्राइम, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए z बाई 100 z, राइट, एंड दिस स्टार दैट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ यूनिट्स। सो अभी क्या बताया n इज इक्वल टू 100, और n इज इक्वल टू 100 को फिर आप थोड़ा फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, यही तो होगा 25 4 जा
नाउ यू जस्ट कंपेयर, अभी आपको क्या बताया, एन साइक्लिक कब होगा, इफ इट इज आइदर 1, R2, R4, आर पी रेज टू द पावर के हो जाए, या फिर 2p रेज टू द पावर के हो जाए। तो ये जो नंबर n है, ये तो 1 तो है नहीं, राइट, 1 तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, p रेज टू द पावर के, क्या ऐसा कोई है जिसका, अच्छा बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे 10 रेज टू द पावर 2 कर दूं तो 100 आ जाएगा, लेकिन 10 क्या प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है, नो, राइट, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी हम नहीं लगा सकते ना। ये बचा 2 इंटू पी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू अगर पी रेज टू द पावर होता, यानी 2 इंटू 5 स्क्वायर होता, तब हम कुछ कह सकते थे कि ये फिर क्या है, ये बोल सकते थे कि दिस इज साइक्लिक, लेकिन इस केस में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी फॉर्म इसमें से मैच नहीं कर रहा है, राइट, सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्ड। अब चलिए फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, दिस द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नाउ if you look here, then what about this? This is basically Z star by 163 Z raised to the power star, right? अब ये बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, what is the possibility, whether it is from the cyclic or not? I just tell you, either the n value is 1, 2, 4, p raised to the power k, or 2p raised to the power k, where p is basically the odd prime and k is greater than 0. तो यहाँ पे जो n लिखा हुआ है ये क्या है, this n is basically 163, and you know this 163 is what, this 163 is ऑड प्राइम। देखिए यहाँ पे ये ऑड प्राइम ही है, बहुत क्लियर है, 163, ये किस फॉर्म का है, आप बोल सकते हो p रेज टू द पावर 1 फॉर्म का, जहां पर p क्या है, ऑड प्राइम, ये आपको पता है प्राइम नंबर है और ऑड है। सो what we can conclude that the four option is also cyclic, so only option number A and D या फिर 1 and 4th ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से अराउंड 50-60% क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट किसी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट किसी शॉर्टकट पे बेस्ड होते हैं। ओनली 30-40% क्वेश्चंस विच आर बेसिकली कंसेप्चुअल टाइप, जहां पे आपको बहुत कुछ सोचना है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इस लेवल के बनाए ही जाते हैं कि उसमें थोड़ा टाइम लगे, बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस। आपको उन क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, सबसे पहले हमें फोकस किन क्वेश्चंस पे करना है जिसपे आसानी से हम अपने थ्योरम, लेमा, स्टेटमेंट जो डायरेक्टली रिजल्ट पे बेस्ड हो उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर ले विद इन 2 or 3 minutes, राइट। नाउ वी जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, and before going to solve this question number 2, which is from the part B, I just tell you, if you are interested for the course, crash course for the June 2021, then you can join our academy, right, and this academy will cover all the papers, all the 10 papers basically: modern algebra, ODPD, linear algebra, real analysis, complex analysis, topology, numerical method, integral equation, LPP, and general aptitude. All these papers are available. You can join our crash course. और इस क्रैश कोर्स में हम बेसिक से लेके एडवांस तक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला एवरीथिंग विल बी कवर्ड, राइट, एंड दिस कोर्स विल बी फिनिश बिफोर द CSIR एग्जाम। Now this question is basically G, again Z by 25 Z star. This is Z by 25 Z star, which is basically a group of units. This is group of units, and this what we have to prove। देखिए यहाँ पे कह रहा है this is basically group of unit in a ring, इस रिंग में है, और रिंग is basically Z by 25 Z, right, this is from a ring, and this star, that is Z by 25 Z star, which is a group of units of this ring, right। Now we look which of the following is the generator of G। अब हमें ये देखना है
कि कौन सा जनरेटर है। अच्छा देखिए जनरेटर का किसी भी, अच्छा देखिए एक और चीज है, दिस इज बेसिकली द साइक्लिक ग्रुप, राइट। आई जस्ट टेल यू कि दिस इज बेसिकली 25Z which is isomorphic to UN, right? In this case it is U25। नाउ देखिए अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है ये भी हमें देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटर। अच्छा साइक्लिक ग्रुप आप जानते हैं कि उसके पास जनरेटर होता है जो हर एलिमेंट को जनरेट करता है, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट को जनरेट करता है। इसे एक भी जनरेटर हो सकता है, दो भी जनरेटर हो सकते हैं, राइट। सो जनरेटर एक ही या दो एलिमेंट इस तरीके से जनरेटर होते हैं जो जनरेट करते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसमें से कौन सा जनरेटर है। अच्छा देखिए जो भी जनरेटर होता है साइक्लिक ग्रुप का, उसका जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट का ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा उसके जनरेटर का, राइट। वही ऑर्डर होगा उसके जनरेटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है। देखिए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट थिंग। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इन जी, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे, और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज द डिफरेंट थिंग। देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब ए रेज टू द पावर अगर n रखूं, ठीक है, सो दिस बिकम आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n का मतलब क्या है, इफ वी जस्ट, अच्छा देखिए ये जो a पे पावर n है दिस इज द केस फॉर द मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन। a रेज टू द पावर n की वैल्यू अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो जनरेटर है यानी सी साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा देखिए अगर यू एन के ये आइसोमार्फिक है और साइक्लिक है तो आपको पता है कि इसके पास कितने एलिमेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस U25 का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U25। अच्छा हम ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उसी में से कोई एक एलिमेंट है जो जनरेटर है, राइट। और अगर हमें इसका ऑर्डर पता चल जाए तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप किसके बराबर कर दूंगा, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। यानी ये वो सारे एलिमेंट है, इन्हीं में से बताना है कौन सा एलिमेंट वो है जिसका बेसिकली वो जनरेटर है। तो जो भी जनरेटर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और यही n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा, क्योंकि आपको क्या बताया, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर फॉर द केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका U25 है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप कितने होते हैं, 5n होता है आयलर्स फंक्शन के बराबर। तो आप निकाल सकते हैं 525, राइट। अब ये आपसे पता चल जाएगा इससे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और वही हम पावर कर देंगे जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो देखिए नाउ यू कैन कैलकुलेट 525, और 525 हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है जो स्टार वाला ग्रुप है इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब वही ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट आयलर्स फंक्शन। आयलर्स या नंबर है बेसिकली, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे 525 की वैल्यू। तो ये पता है 525 दैट इज 5 स्क्वायर, और ये फार्मूला क्या होता है आयलर्स फंक्शन का, 25n इंटू 1 माइनस 1 बाई पी। पी की जगह क्या है 5, राइट। सो कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 20, राइट। 5 यानी 4 बाई 5, 5 5 जा 5 4 जा, राइट, इट कम्स 20। यानी एक चीज क्लियर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज बेसिकली व्हाट 20, ठीक है। ये कितना हो गया 20। अब जो भी एलिमेंट है देखिए यही बताया ऑर्डर ऑफ द जनरेटर के बराबर होगा। अच्छा ये ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा जनरेटर है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कौन क्या चीज फाइंड आउट करनी है, आपको ये चीज ध्यान रखना है किस पे पावर, देखिए ए पे पावर क्या कर दूं 20 कर दूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। और यानी 3 पे पावर 20 कर दूं तो 1 आ जाए, या फिर 4 पे पावर 20 कर दूं दिस विल बी 1, और
5 पे पावर 20 कर दूं, दिस विल बी 1, और क्या हो जाए, लास्ट वन इज 6 पे पावर 20 कर दूं, 1 हो जाए, राइट। और मैंने आपको एक लेक्चर में, जहां पे सबसे पहले लेक्चर अपलोड किया था, लेक्चर नंबर 1 2021 के लिए, वहां पे आपको बताया था आपको नंबर सिस्टम या नंबर थ्योरी में कि कैसे बता सकते हैं कि उसका रिमाइंडर 1 आएगा बहुत आसानी से। क्योंकि ये देखिए U25 पे कर रहा है, यानी दिस इज ऑपरेटेड ऑन मॉडुलो 25, राइट। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, दिस इज फॉर वर्क फॉर द मॉडुलो 25। तो देखिए मॉडुलो 25 के लिए बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं किस केस में रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको इस पे बताया हुआ है कई फॉर्मेट थ्योरम, आयलर्स फंक्शन, राइट, आयलर्स थ्योरम, और जो भी दो चार थ्योरम, उसमें बहुत आसानी से आप कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हैं किसमें रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। और जिसपे आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका जनरेटर हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया कि कैसे, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से रिंग से, बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन रिंग से लिए गए हैं, रिंग स्ट्रक्चर का है ये क्वेश्चंस दोनों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। कई और क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देखते हैं आगे भी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए इसके ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं जिससे आपके लिए आसानी रहे। देखिए एज इट इज वर्किंग विथ मॉडुलो 25, तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 25 करेंगे, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। और जैसे ही इस पे आप पावर करेंगे 3 पावर 20, ये आपका आ जाएगा 576। चूंकि ये किसके साथ काम कर रहा है, इट इज वर्किंग विथ मॉडुलो 25, तो जैसे ही मॉडुलो 25 लगाएंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, आपको बहुत क्लियर है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ये 76 है, देखिए 576, बहुत क्लियर है, एक रिमाइंडर बचेगा। दिस मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बट यस, डोंट बिलीव मी, आप खुद इसे कैसे करेंगे, यू जस्ट अप्लाई द व्हाट, जो अभी आपको आयलर्स थ्योरम या फिर फॉर्मेट थ्योरम, लिटिल थ्योरम, जो भी आपको थ्योरम्स बताया उस बेसिस पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको आसानी से। क्योंकि देखिए हमें एग्जाम में हर वो टेक्निक पता होनी चाहिए जिससे हम उसको क्विकली सॉल्व कर सके। 2 to 3 मिनट्स द क्वेश्चन में बी सॉल्व, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और इससे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, राइट। सो चलिए इस लेक्चर में बस यहीं तक, आगे के लेक्चर में फिर आगे देखते हैं।